ज़्यादातर डिस्कस किया है, यानी इम्यून सिस्टम हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, विच फॉर्म द एंटीबॉडीज विच फॉर्म द एंटीबॉडीज। देखो इसमें से अगर हम देखेंगे देखो हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़े थे, एसोनोफिल्स पढ़े थे, बेसोफिल्स पढ़े थे, मोनोसाइट जिसमें मैक्रोफाज आते हैं पढ़े थे ना, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। आज हमारा जो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है वो है लिम्फोसाइट्स। These lymphocytes cells which are called the cells of immune system. So we can call the chief cells of immune system or the lymphocytes. The chief cells of immune system are the lymphocytes. Means the antibodies are formed by the lymphocytes. The immune antibodies are formed by the lymphocytes, and these lymphocytes, they are the part of the white blood cells. They are the part of the white blood cells. मैंने आपको कहा था ये WBCs कहाँ से बनते हैं? WBCs कहाँ से बनते हैं? WBCs कहाँ से बनते हैं? पिछली दफा मैंने बताया था एम ए खान आमिर, कहाँ से बनते हैं? बून मैरो से बताया था ना, क्यों आप भूल जाते हो? बून मैरो से बताया था। कहाँ से सादिया बनते हैं? बून मैरो से। कहाँ से? सादिया, इज माय वॉइस कमिंग टू यू? Bone marrow. The lymphocytes are of the two types. The lymphocytes are of the two types. One is the B lymphocyte, the T lymphocyte. I am repeating it. The chief cells of the immune system are the lymphocytes. Lymphocytes are the part of the WBCs, white blood cells. WBCs are formed from the bone marrow. So these lymphocytes are also formed from the lymphocytes. There are two types of the lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. We will study them one by one. As far as the B lymphocytes are concerned, B means actually a B is here the bone marrow. It is not here the bone marrow. B lymphocyte here means it was first discovered in the birds. There is a lymph node in the birds that is known as a bursa of fabricia. From that it got the name B lymphocytes. And in the human beings, we called it as a bone marrow because they are formed from the bone marrow. And the T lymphocytes, T here forms the thymus. हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट्स पहले हम डिस्कस कर देंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या डिस्कस कर देंगे? बी लिम्फोसाइट्स, द लिम्फोसाइट्स दैट आर फॉर्मड फ्रॉम द बोन मैरो। The B lymphocytes, these are formed from the bone marrow, and these antibodies are the humoral antibodies. These antibodies are in the blood or in the fluid medium of the body. These are known as the B lymphocytes. बी लिम्फोसाइटस बी लिम्फोसाइटस जो हैं ये मैंने बताया कि ये बून मैरो में बनते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं हेमाटोपोइसिस। बी लिम्फोसाइटस बून मैरो में बनते हैं और दैट प्रोसेस इज नोन एज ए हेमाटोपोइसिस। मेजर कहाँ होते हैं? When they are formed, they are the immature B lymphocytes. They then mature in the bone marrow. They then mature in the bone marrow, and also the lymph nodes like the tonsils and the Peyer's patches that are the lymph nodes in the intestines. They are matured, they are formed in the bone marrow, they mature in the bone marrow, but also mature in the tonsils as well in the Peyer's patches, which are the lymph nodes in the intestines. Which are the lymph nodes in the intestines. When they become the mature, when they are manufactured from the mere marrow, mature in the lymph nodes. The prayers, Sadia, are you listening to me? Sadia, is my voice coming to Amir? Amin Khan, is my voice coming to you?
राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, मैं बी लिम्फोसाइटिस का बता रहा हूँ। मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइटिस जो है, हमने लिम्फोसाइटिस 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। बी लिम्फोसाइटिस मीन्स द बोन मैरो lymphocytes. They are formed in the bone marrow, and their formation is known as a hematopoiesis. They mature in the bone marrow and but also mature in the lymph nodes like the tonsils as well as the pair patches. Their pair patches, I am writing it here, the pair patches. Pair patches are the lymph nodes that are present in the pair patches. Pair patches are the lymph nodes that are present in the intestines. Right? Understand? But when they are matured, they are stored in the cortical region of the lymph nodes. They are stored in the cortical region of the lymph nodes. Understand? अब तक अंडरस्टैंड हुआ? सादिया, आमिर, राइट? अब तक अंडरस्टैंड हुआ? वेरी गुड। क्या क्या मैंने बताया अब तक? क्या क्या मैंने बताया अब तक? ये lymphocytes के न, बारे में। वेरी गुड। क्या मैंने बताया बी लिम्फोसाइट्स के बारे में? वेरी गुड, तो ये फॉर्म होते हैं बोन वेरी गुड। फॉर्म ऑफ इन बोन मैरो और इस हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फ्लूइड मीडियम ऑफ बॉडी। वो मैचवर भी होते हैं बोन मैरो में और टॉन्सिल्स और पेयर पैड्स लिम्फ नोड्स ऑफ इंटेस्टाइन में और स्टोर होते हैं कॉर्टिकल रीजन ऑफ लिम्फ नोड्स में। Excellent, super excellent, super excellent, super. Also, when they are stored, so this means that they are in the fluid medium. These are known as a humoral antibodies. They are stored in the humoral region, means the fluids of the body. Fluids of the body. So these are known as a antibody mediated immune system. Antibody mediated immune system, AMIS, very important. AMIS, antibody mediated immune system. यानी ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडी ये डायरेक्टली सेल को अटैक माइक्रोब्स को अटैक करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। राइट? जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी जो भी सेल के बाहर माइक्रोब्स आएंगे, ये इन पर अटैक करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स किन पर अटैक करते हैं? जो सेल के बाहर, ये एज एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, दे अटैक ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स। Understand? I am repeating it. The B lymphocytes are formed in the bone marrow. They are stored in the lymph nodes. This is known as a humoral antibody system, and it is known as a AMS, antibody mediated immune system, because they remain in the humoral system of the body. Humoral system of the body. They attack to the pathogens that are extracellular. Very good. I am writing it here. That are extracellular. Understand? Understand? Is this crystal clear to you? Very good. Yes, sir. Very excellent. ये जो बी लिम्फोसाइटिस हैं, बी लिम्फोसाइटिस के दो तरह के होते हैं। बी लिम्फोसाइटिस दो तरह के होते हैं। एक हो गया प्लाज्मा बी सेल्स, जो एक्चुअली एंटीबॉडीज प्लाज्मा बी सेल्स। बी लिम्फोसाइटिस दो तरह के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स, और दूसरा है मेमोरी बी सेल्स, MEMORI, मेमोरी बी सेल्स। ठीक है? ये याद रखना। मैंने कहा कि लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो लिम्फोसाइट्स, एंड टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स 2 तरह मैंने बताया, ये कहाँ बनते हैं, स्टोर कहाँ होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, यानी प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स, these are the glycoproteins. These are the glycoproteins. And every
every antigen, every antigen, and these are known as the factories of the antibodies. ये मानिए plasma B cells, these are the glycoproteins, and these are known as the factories of the antibodies. These are known as the factories of the antibodies. Right? It has been reported that the every cell produces 2 trillion antibodies per minute, per day, to 20 trillion. I am writing it here, 20 trillion. 20 trillion antibodies are produced by the plasma B cells per day. Right? These are of the प्लाज्मा बी सेल्स. मैंने बताया बी लिम्फोसाइट्स के 2 तरह के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा बी सेल्स directly attack to the antibodies that are extracellular, and they are particular for the particular antigen, right? And how did they attack? They agglutination. First of all, they get connected to the pathogen. They get connected to pathogen. Second, उसको कहते हैं agglutination. Agglutination. दूसरा है यानी कि it gets combined with the bacteria or the virus or the microbe we can called. Then second function it दूसरा है इसका opsonization. Opsonization means that it forms the coating around the microbe. It forms the coating around the mod, and then neutralization, and then kills it, then neutralizes it. I am repeating it, Sadia. प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड plasma B lymphocytes, plasma B cells and the memory cells. Plasma B cells glycoprotein के होते हैं. They produce the antibodies and they are known as the factories of the antibodies. Every plasma B is specific for an every antigen. The functions of an antigen, how it functions, first of all, it gets connected to the antibodies. The process is known as agglutination. Agglutination. The process is known as when the antibody will connect to the pathogen, that is known as agglutination. Second is the opsonization. It makes the coating around this pathogen, and that is known as opsonization, and then kills it, that is known as a neutralization. Understand? Sadia? Sadia, crystal clear to you? Crystal clear, can you repeat it so that Amir and Mahreen will listen it? सर जो बी लिम्फोसाइट्स है इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स. Wait. जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एज फैक्टरी एंटीबॉडीज. और ये देखा गया है कि पर डे ये 20 ट्रिलियन एंटीबॉडीज बनाते हैं. Very good. प्लाज्मा बी सेल्स आर पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर एंटीजन. Very antigen, not pathogen. Antigen, not pathogen. Very good. Very good. Go on. Excellent. इसके 3 स्टेप्स में इसके 3 स्टेप्स होते हैं. पहले दे गेट कनेक्टेड टू पैथोजन. इस प्रोसेस को हम एग्लिनेशन कहते हैं. और फिर उसके बाद कोटिंग एक फॉर्म करती है अराउंड माइक्रोब, उसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं. और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये किल करता है पैथोजन. Very excellent, Sadia. Excellent. You are congratulations to you. You are understanding things. Very good. Very good. So we can, and then it is the lymphocytes has the memory cells. They keep the record. Which pathogen we have attracted, which pathogen we have neutralized at a time, and they keep it a record. Second time this pathogen will come again. There is a record of it, and the same type of the glycoprotein antibodies are produced at that time. So there is a memory of the pathogen. When the pathogen with a second time attack it, there is no requirement of the medicines. The body itself will attack to the pathogen.
Right? Understand? So the B lymphocytes have the two types of the cells, plasma B cells and the memory B cells. Plasma B cells neutralizes or the kills the pathogen. Second memory cells keeps the record of the which type of the antibodies has been produced and which pathogen has attacked. The intake keep it the record on it. Second time if they will come, it they themselves attack, do the work, do their own work. Right? Understand? अब तक अंडरस्टैंड हुआ? वेरी गुड। ठीक है ना? इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? हाँ, लिम्फोसाइट का ये बी लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है ना? जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स मैंने बताया, हमारे हमारे जो चेस्ट है ना, वहाँ पर एक 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 एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज ए थाइमस। दिस इज द थाइमस। शायद ये देख लेना, अच्छी तरह से देख, बाइलोबर थाइमस in our chest, and that is known as thymus. From this gland, the name has been given by the T lymphocytes. The name has been given by the T lymphocytes. This this remember it. जब इंसान बूढ़ा होता है, ये थाइमस ग्लैंड भी दिन ब दिन रिड्यूस होता है। दैट इज वाई ओल्ड एज पीपल आर मोर वर्नरेबल टू द पैथोजन इनको ज्यादा अटैक आता है क्योंकि इनके पास ये थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होता है। बाय द इंक्रीजिंग एज दिस थाइमस ग्लैंड इज रिड्यूसिंग इन साइज, it is reducing in size. That is why in the old age, the in the old age, what happens, this thymus gland gets reduced and our immunity is so weak, that is why it has been known as the thymus T lymphocytes. इस T lymphocytes को हम कहते हैं, इसको कहते हैं throne of immunity। इस थाइमस ग्लैंड को कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों कहाँ पर बनते हैं? कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर मेजर होते हैं? हमने पियर्स, पेचेस, lymph नोड्स मैंने बताया, मगर यह यहाँ पर मेजर होते हैं, थाइमस ग्लैंड पर भी मेजर होते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर इनको दिखाया जाता है, कि किन-किन पैथोजेन्स पर आप, किस पैथोजन पर आप अटैक कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप अटैक? कैसे कर लेंगे आप अटैक? सो दिस मीन्स द टी लिम्फोसाइट्स आर द सेल मीडिएटेड, वो क्या कहते थे? एंटीबॉडीज मीडिएटेड। दिस टी लिम्फोसाइट इज नोन एज ए सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दो चीजें याद रखना, AMIS antibody mediated immune system, CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी हम टी लिम्फोसाइट्स को कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये बनते कहां पर? बून मैरो में। वही प्रोसेस इनको यहां पर हेमाटोपोइसिस, क्या कहते हैं? हेमाटोपोइसिस। मेजर कहां पर होते हैं? थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि वहां पर एक हार्मोन निकलता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, दैट इज कॉल्ड द थाइमोसिन। क्या कहते हैं इसको? थाइमोसिन। राइट, राइट, है। और यह भी स्टोर होता है लिम्फ नोड में, ये भी स्टोर होता है लिम्फ नोड। मगर ये किन पैथोजेंस को किल करता है? विच आर इंट्रासेल्युलर। बी लिम्फोसाइटस एक्स्ट्रा सेल्युलर थी, ये इंट्रासेल्युलर है। सो इसको कहेंगे CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसी तरह से, इसीलिए इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? सादिया, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Very good. Yani, Yes. I am repeating it. T lymphocytes, thymus lymphocytes, they are formed from the or with this bone marrow by the process hematopoiesis. They mature in the thymus gland. By this by a hormone produced by the thymus, that is known as a thymosin. That is known as a thymosin. They are stored in the lymph nodes. They
they attack to the pathogens that are intracellular. That is why this lymphocyte is known as a cell mediated immune system. Cell mediated immune system. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है। जब ये टी लिम्फोसाइट्स किसी बॉडी पर किसी पैथोजन पर अटैक करते हैं, जब किसी पैथोजन पर अटैक करते हैं, इट इमीडिएटली प्रोड्यूसेस फोर टाइप्स ऑफ द सेल्स। It immediately produces the four types of the cells. One is the helper T cell. One is the helper T cell. Second is the killer T cell. Third is the suppressor T cell. Fourth is the memory cells. यानी जब टी लिम्फोसाइट किसी के पैथोजन के साथ इनकाउंटर होता है, इट इमीडिएटली फॉर्म्स इट्स क्लोन सेल्स, एंड दीज क्लोन सेल्स आर नोन एज द हेल्पर टी सेल्स। इनको दूसरा नाम भी है CD4 सेल्स, T4 सेल्स, किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD8 सेल्स, T8 सेल्स। थर्ड इज द सुप्रेसर सेल्स एंड द फोर्थ इज द मेमोरी सेल। फोर्थ इज द मेमोरी सेल। एक एक करके पढ़ लेंगे हम। पहला जो टी लिम्फोसाइट है, हेल्पर टी सेल्स, मोस्ट एबंडेंट होते हैं ये बॉडी में मोस्ट एबंडेंट किनका, क्योंकि इनका काम होता है जब पैथोजन के साथ अटैक होता है तो ये डायरेक्टली क्या बनाते हैं, हेल्पर टी सेल्स। क्यों बनाते हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कर दो वेदर इट इज ए फोe और द फ्रेंड, क्योंकि कुछ पैथोजेंस हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। द हेल्पर टी सेल्स हैज द प्रॉपर्टी टू आइडेंटिफाई वेदर द पैथोजन दैट हैज कम इनटू द बॉडी, that has crossed the physical as a chemical barriers we have already studied, whether it is a friend or the foe, and then it stimulates। function क्या करता है, stimulates। if it finds that it is the pathogen is an enemy, it stimulates the killer T cells। किलर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, कहता है एक्टिवेट कहता है, और इसके साथ बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करता है, जो फ्लूइड्स में होंगे, कहीं तो ये आ पर नहीं आएंगे, वहां पर अटैक, इनको भी एक्टिवेट करता है, राइट। और तीसरा काम क्या करता है, इस पैथोजन को अटैक करता है, किनके साथ अटैच करता है, मैक्रोफाज के साथ, ताकि मैक्रोफाज का फंक्शन क्या है, अपने आप को पैथोजन को इनगल्फ कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। इसीलिए जब HIV का अटैक होता है वो इन्हीं सेल्स को कम कर देता है, क्योंकि ये सेल्स इनको क्या ये इन सेल्स इनका काम होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, इन्हीं सेल्स को पहले कम ही कर देते हैं ये HIV। क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हेल्पर टी सेल्स, मैं फिर रिपीट करूंगा। जब पैथोजन अंदर बॉडी में गया तो टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स अपने क्लोन सेल्स इमीडिएटली बनाते हैं। कौन कौन से सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सुप्रेसर सेल्स, द मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या काम करते हैं, हेल्पर टी सेल्स आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। इफ इट आइडेंटिफाइज दैट द पैथोजन इज एन एनिमी टू द बॉडी, इट इमीडिएटली स्टिमुलेट्स द किलर टी सेल्स, जो ये दूसरा नंबर पे क्लोन होता है। दूसरा क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, ये पैथोजन आ रहा है कभी तो ये ह्यूमरल सिस्टम का एक्स्ट्रा सेलुलर एनिमी तो नहीं है, तो इसको खाइए, इसको इस पर एक्ट कीजिए। और तीसरा क्या कहता है, इस पैथोजन को अटैच करता है, किसके साथ, मैक्रोफाज के साथ अटैच करता है, ताकि वो क्या काम करेंगे, वो इसको खा लेंगे, वो इसको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस थ्रू खा लेंगे। हाँ, फिर किलर टी सेल्स के पास आते हैं। किलर टी सेल, जब हेल्पर टी सेल्स ने इसको स्टिमुलेट कर दिया, जब हेल्पर टी सेल्स ने स्टिमुलेट कर दिया तो ये क्या करते हैं, किलर टी सेल्स एक किस्म का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज ए परफॉरेंस। परफॉरेंस एक किस्म का केमिकल होता है, ये इनके सेल्स में होल्स बना देते हैं, ये इनके सेल्स में होल्स बनाते हैं, एंड देन किल्स द सेल्स, and then kills the cells, and then after it is suppressor cells। कहीं ये नजर रखता है suppressor cells, कहीं ये नजर रखता है, कहीं तो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इतने ज्यादा तो नहीं हुए कि ये अपने बॉडी के सेल्स को खा लेंगे, अपने जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम फिर कहते हैं, अल्लाह बचाए उस ऑटो इम्यून सिस्टम से। ऑटो इम्यून सिस्टम अपना ही डिफेंस सिस्टम अपने बॉडी के अगेंस्ट होता है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून सिस्टम। सो
T lymphocytes ये भी प्रोड्यूस करते हैं suppressor cells. They keep the check on the immune system cells, antibody cells, so that they will not attack the body cells. They will not attack the body cells, and these are known as the suppressor cells. Suppressor immune system prevent from attacking the cells by these antibodies. And the third is the memory cells. They keep the record जो हमने B lymphocytes में पढ़ा, record which lymphocyte has been killed, which lymphocyte the body has encountered at a time. Sadia, crystal clear? Sadia, Yes, sir. crystal clear? Crystal clear to you? Yes, sir. राइट मैंने Yes, sir. पढ़ाया बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स कौन कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? जल्दी से बता, जल्दी से. Helper cells, killer T cells or cytotoxic cells or CD8 cells or T8 cells and suppressor T cells and memory T cells. हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होता है? Identify the foes and friends. और वेरी उसके गुड. बाद ये स्टिमुलेट करता है किलर टी सेल्स को और बी लिम्फोसाइट्स को भी. और उसके बाद ये माइक्रो जो पैथोजन होता है इसको अटैच करता है माइक्रोफाज के साथ जो इनको खा जाते हैं, हम इनगल्फ करते हैं. और उसके बाद जो किलर सेल्स है वो पेरफोरिन एक केमिकल है उसको स्क्रीट करते हैं जो इनकी पैथोजन की बॉडी में होल्ड करते हैं और इनको किल करते हैं. उसके बाद सप्रेसर टी सेल्स जो होते हैं ये कीप द चेक ऑन इम्यून सिस्टम सेल्स के कहीं ये एंड ज़्यादा ना हो जाए और मतलब अपने ही इम्यून सिस्टम के खिलाफ ना हो जाए. उसके बाद मेमोरी सेल से रिकॉर्ड रखता है वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट सादिया. सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम ये था आज बी लिम्फोसाइट्स जिसमें दो तरह का है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? वेरी गुड, वेरी गुड. और मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं रहा है. आमिर खान, इमीन खान, डिड देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं रहा? कोई वेरी गुड. सादिया कोई डाउट है? मुझे बताइए. वेरी गुड. दिस वाज ऑल अबाउट हम स्कूल भी जाते हैं सादिया, इसलिए आई एम टेकिंग ऑफ. शैल आई टेक ऑफ? Shall I take off? All up to you. Allah Hafiz. All up to you. That is all for today.